Welcome back, students. Welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and I'll be presenting you today daily current analysis covering 29th July 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो कि हमारी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज़ अबाउट एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज़. सो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है एंड वी सी एवरी आफ्टर सम टाइम देयर सम एरिया विच पॉप्स अप इन द न्यूज़. सो नाउ there's a region, there's a place called as Kherson in Ukraine that has catched the limelight. Well, this topic becomes important क्योंकि आपके prelims में sometimes we get some direct questions in prelims which generally relate to the places which were in news. If you'll see the previous year question papers, so if there is any country where there was some unrest or some uprising that was going on and there was a proper place, there was some place which was in news, so they simply put that name of the place over there and they ask you to relate it to the event. So Kherson is one such place in Ukraine which is in the limelight. So we'll see the map as well and we'll see why Kherson is in news. So basically, because of the ongoing Russia-Ukraine war, Ukraine has struck a very key bridge in the Kherson region. There's a place called as Kherson which is right now held by Russian forces. तो रशियन फोर्सेस को वहाँ पे लिमिट करने के लिए, उनकी सप्लाई चेन को रोकने के लिए यूक्रेन ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रिज है, यूक्रेन की एक इम्पॉर्टेंट रिवर के ऊपर ये ब्रिज लाई करता है. तो दो चीज़ें यहाँ पे लिंक हो जाती हैं. एक तो वो रिवर कौन सी है जिसके ऊपर ये ब्रिज था, जिसे यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय किया है, जिससे कि खेरसन की तरफ से जो रशियन फोर्सेस हैं वो आगे प्रोसीड ना कर पाए या फिर जो सप्लाईज उनको मिल रही हैं उसके अंदर एक डिसरप्शन क्रिएट हो पाए. तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. लेट्स कैच दिस आर्टिकल इन मच मोर डिटेल. सो हियर यू कैन सी द मैप. दिस इज़ द मैप ऑफ यूक्रेन. सबसे पहली चीज़ तो आज आपने करनी है, यू विल ओपन द मैप ऑफ यूरोप एंड अगेन यू हैव टू मार्क द कंट्रीज which are bordering Ukraine. The countries that border Ukraine you should know by heart. Okay, that is something that I want you to do today. Apart from this, in this map, the shaded, red shaded areas are the regions which are under the control of Russian military forces. So you can see, if you talk about Ukraine, the almost eastern part of Ukraine, here is Russia, and the eastern part of Ukraine has been, the Russian military force has occupied it. And all those areas where you're seeing these lines, these shaded lines, these are those areas where the Russian forces, they're making advances, right? So in this article, we're talking about Kherson, which is here, okay? And here as well you can see that this is the region where Russian forces were making advances. So what Ukraine's force has done, Ukraine's military has done, there is a very important bridge over here which lies on an important river of Ukraine. So Ukraine forces has struck on that bridge. उस ब्रिज के ऊपर आर्टिलरी अटैक किया गया क्योंकि इसके साउथ में जितना भी एरिया है, दिस इज़ कंट्रोल्ड बाय रशिया नाउ as it is shaded in red. तो यूक्रेन का ये स्ट्रैटेजी है कि इस ब्रिज को डैमेज करने के साथ दे कैन डैमेज द इम्पॉर्टेंट सप्लाई रूट टू द रशियन फोर्सेस एंड विद दिस दे कैन रेस्ट बैक द खेरसन रीजन बिकॉज वहाँ से अब एडवांसेस डिले हो जाएंगे. ओके जी. सो ये जो स्ट्राइक हुआ है, दिस ब्रिज इज बेसिकली ऑन दिनेपर रिवर. आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, व्हेन यू डू द मैप ऑफ यूरोप, यू लोकेट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर्स. तो स्पेशली व्हेन यू सी द रिवर्स दैट ड्रेन इनटू ब्लैक सी, ठीक है. सो बहुत सारी रिवर्स आएंगी, दिनेपर, दिनिस्टर, दानूबे, डॉन, यू से इतनी सारी रिवर्स हैं, सबका नाम डी से शुरू हो रहा है एंड ऑल ऑफ देम वर ड्रेन इनटू ब्लैक सी. सो दैट रिवर दिनेपर इज इन न्यूज़.
तो दिनेपर रिवर के ऊपर ये ब्रिज है, इस ब्रिज का नाम है एंटोनिविस के ब्रिज. दैट इज़ नॉट व्हाट वी नीड. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज़ द प्लेस एंड द रिवर दिनेपर. सो अभी रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स भी हो रही थी. इस्तांबुल में जॉइंट ऑब्जर्वेशन सेंटर ओपन अप किया गया है सो दैट वी कैन मॉनिटर द यूक्रेन्स ग्रेन एक्सपोर्ट, जो कि रशिया की जो वॉरशिप्स हैं उसकी वजह से ब्लॉक हो चुका है. तो जस्ट बिफोर दैट जॉइंट ऑब्जर्वेशन सेंटर वॉज गोइंग टू टॉक अबाउट इट, दिस वॉज डन. Ukrainian forces, in recent weeks, they have clawing back the territory in the Kherson region. तो जिसकी वजह से जो रशियन फोर्सेस हैं दे ट्राई टू लॉन्च वेरी इजी एंड अर्ली आफ्टर द इन्वेजन ऑफ व्हेन दे स्टार्टेड द इन्वेजन इन February 24th. तो ये जो काउंटर ऑफेंसिव अटैक आया है यूक्रेन की तरफ से, इट इज़ सपोर्टेड बाय वेस्ट. ये वेस्ट ने जो यहाँ पे लॉन्ग रेंज आर्टिलरी यूक्रेन को प्रोवाइड की है उसे यूज़ करके यूक्रेन ने इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया है. And by this, because they were seeing कि जो forces and they're coming closer to the Kherson city, and it also have a huge, population in that region as well. So this is a very important step if we talk about the Russia-Ukraine war. हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सा किस रिवर के ब्रिज था जिसे डिस्ट्रॉय किया है. Now, why we are discussing this article is because we need to cover Dnieper River in detail, because rivers के ऊपर बहुत ही commonly आपके prelims में question आ जाता है. सो आर्टिकल के अंदर दिनेपर को दो तरह से लिखा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिनेपर लिखा है एज सच. अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो राइट इट इन दिस मैनर, दिनेप्रो, राइट, दिनेप्रो और दिनेपर. दिस इज जस्ट द सेम रिवर. सो यूरोप हैव सो मेनी रिवर्स एंड दिनेपर इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ यूरोप. एंड हियर आई विल ट्रेस दिनेपर रिवर फॉर यू. सो Dnieper River, which drains into Black Sea. First of all, you should know that Dnieper River drains into Black Sea. And as we are tracing it, let me quickly trace it down. You can see that Dnieper River originates from Russia. Russia से जो आपकी Dnieper River है ये originate करती है. In Russia we have this place called as Valdai Hills. याद रखिएगा ये पॉइंट. वाल्डाई हिल्स से रशिया से ये रिवर ओरिजिनेट करती है एंड देन इट फ्लोज थ्रू बेलारूस एंड देन इट कम्स टू यूक्रेन एंड देन इट फाइनली ड्रेन्स इनटू ब्लैक सी. ओके, originates from Russia, Valdai Hills. From Russia it goes to Belarus, Ukraine and then Black Sea. This river is important first of all for Ukraine. For Ukraine it is the longest river. Dnieper is the longest river in Ukraine and it is the fourth longest river in Europe. यूरोप में ये फोर्थ लॉन्गेस्ट है. यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है वोल्गा. मार्क इट डाउन इन योर टुडे यूरोप्स फिजिकल मैप. अपने फिजिकल मैप में आप वोल्गा रिवर को ट्रेस करेंगे एंड नोट इट डाउन दैट वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप. Volga, then it is followed by Danube, Volga, Danube. Then there are Ural River, Volga, Danube, Ural River, and then at fourth you have Dnieper. So that is why I am saying that this news is important because of the river which is in news, which is Dnieper River. Fine. तो ये ट्रेंड भी आप याद रखेंगे. The longest river of Europe is Volga, followed by Danube, Ural and Dnieper, and Dnieper is the longest river in Ukraine itself. This river originates from Russia, passes through 3 countries, Russia, Belarus, Ukraine and ultimately drains into Black Sea. तो ये आपका होमवर्क है. एक तो आपने ये रिवर्स ट्रेस करनी है. यहीं पे मैंने एक और चीज़ कही थी कि यूक्रेन को कौन कौन से कंट्रीज़ बॉर्डर करते हैं, ये आज आप नोट करेंगे. एंड ऑल्सो you have to know the name, remember the name of all the rivers that drain into Black Sea. Very 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 important. This region is very important. तो जो जो questions possible बन सकते हैं आज आप अपना map work वहाँ से करेंगे, right? Moving ahead. Now this was about an important place in news. आज हमारा जो मेजर आर्टिकल है it is about the Prevention of Money Laundering Act, PMLA. So this is in news because Supreme Court has upheld some core amendments which were done in the Prevention of Money Laundering Act. अब देखो
इससे पहले कि हम बहुत डिटेल में जाएं, एक चीज़ समझो, ये एक्ट किस चीज़ के लिए है? दिस एक्ट इज़ टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। ये मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। सो व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। मनी लॉन्ड्रिंग से भी पहले हमारे पास एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं डर्टी मनी। डर्टी मनी, ये डर्टी मनी क्या है? Some criminal activities like somebody is doing the illegal arms sales, smuggling, drug trafficking, prostitution rings, insider trading, bribery, computer fraud, anything, any criminal activity that is producing large profit. So the money which is generated by following the criminal activities, जो कि मैंने सभी नेम की, वो जो मनी जो प्रोड्यूस होता है उसे आप कहते हैं डर्टी मनी। ठीक है जी। अब मनी लॉन्ड्रिंग, पहले डर्टी मनी जनरेट होगा, इसके बाद आता है मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट। अब मनी लॉन्ड्रिंग में आपका जो डर्टी मनी है उसे कन्वर्ट किया जाता है सो दैट इट लुक क्लीन। तो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करके किसी ने डर्टी मनी अर्न किया, उसे अब वो क्या चाहते हैं कि वो कैसा नज़र आए? इट शुड लुक लाइक अ क्लीन मनी, जिसे हम लेजिटिमेट मनी भी बोल सकते हैं। लेजिटिमेट मनी, ये जो प्रोसेस है टू मेक योर डर्टी मनी लुक लाइक अ क्लीन मनी और लेजिटिमेट मनी, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इज कॉल्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग. So the money that you earned, somebody earned from a criminal activity, it is considered dirty, and the process through which somebody launders it to make it look clean, it is called as money laundering. And before the beginning of this article, you should know that money laundering is a serious financial crime. It is a serious financial crime that basically employed by white collar and street level criminals alike. Street level criminals or white collar crime ये जो है, they are alike over here. It's a serious financial crime. अब जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं. देयर आर सम स्टेजेस जिसके थ्रू मनी लॉन्डर किया जाता है. सो हाउ दिस डर्टी मनी इज लॉन्डर्ड. तो टिपिकल मनी लॉन्ड्रिंग के सिनेरियो में कुछ 3 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास कैश आएगा, कैश विच इज़ बेसिकली कलेक्टेड in some form of a criminal activity. कोई क्राइम आपने किया, उसके थ्रू जो कैश कलेक्ट हुआ, सबसे पहले तो आपका डर्टी मनी यहाँ पे आएगा. आई एम सॉरी, आई एम सेइंग आपका, राइट. द कैश इज कलेक्टेड थ्रू द क्राइम्स. देन व्हाट हैपन इज द फर्स्ट स्टेप इज प्लेसमेंट. द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज प्लेसमेंट. अब प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो डर्टी मनी है इसे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एंटर करवाया जाता है. द डर्टी मनी इज एंटर्ड इनटू द लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम. इसे क्या बोलते हैं? प्लेसमेंट. प्लेसमेंट के बाद होती है लेयरिंग. प्लेसमेंट के बाद आती है लेयरिंग. नाउ लेयरिंग में क्या होता है कि क्रिमिनल्स दे बेसिकली ट्राई दैट दे डिस्टेंस देयर मनी फ्रॉम द क्राइम सोर्स. जो सोर्स एरिया है जहाँ से वो क्राइम किया गया है, दे विल ट्राई टू डिस्टेंट इट अप. तो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, कुछ बुक कीपिंग ट्रिक्स को अपनाया जाता है जिससे कि जो सोर्स ऑफ मनी है वो कंसील हो जाए. दे ट्राई टू डिस्टेंट द मनी फ्रॉम द क्राइम सोर्स. तो दिस इज कॉल्ड एज लेयरिंग. तो ट्रांजैक्शंस कर करके इस पैसे को घुमाया जाता है, बुक कीपिंग ट्रिक्स के साथ इसको लेयर डाउन किया जाता है. एंड फिर आता है फाइनल स्टेप विच इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन. देन इज द फाइनल स्टेप विच इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का मतलब है अब जो मनी है उसे आप इकोनॉमी में वो री एंटर हो जाता है. बेसिकली कोई क्लीन इन्वेस्टमेंट कहीं पे शो कर दी गई, मनी को लॉन्डर कर दिया गया, लेयर कर दिया गया, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के थ्रू उसे क्लीन मनी बना दिया गया. एंड नाउ इट हैज़ री एंटर्ड द इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ अ क्लीन इन्वेस्टमेंट. तो जो लॉन्डर्ड मनी है अब उसको लेजिटिमेट अकाउंट से विड्रॉ किया जाता है. एंड नाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर वट एवर पर्पज द क्रिमिनल हैव इट इन माइंड.
राइट। सो ये 3 स्टेप्स होते हैं, ये 3 स्टेजेस होती हैं एक टिपिकल मनी लॉन्ड्रिंग सिनेरियो के अंदर। एंड याद रखिएगा, एज आई जस्ट सेड, दैट मनी लॉन्ड्रिंग इज़ अ वेरी सीरियस क्राइम। ओके, नाउ यही हमारा आज का टॉपिक है। देयर इज एक्ट इन इंडिया टू प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग, जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसमें थोड़े रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी, एंड जिन अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया, एंड नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड दोज कोर अमेंडमेंट्स विच वर मेड टू द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सो थोड़ा और डिटेल में इस आर्टिकल को फॉलो करते हैं। अब बेसिकली क्या है कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसमें गवर्नमेंट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी, इनको बहुत पावर्स दी गई हैं। आप न्यूज़पेपर खोलकर देखें, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट काफ़ी न्यूज़ में रहता है, राइट। सो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में गवर्नमेंट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को पावर्स दी गई हैं। दे कैन समन, they can arrest somebody, they can make raids. Also, if somebody has been arrested, by ED in this matter, the bail almost becomes impossible. तो वो समन भी कर सकते हैं किसी को, they can arrest somebody, they can conduct the raids, they can make bail nearly impossible. And along with this, here is one of the important thing is that they shift the burden of proof of innocence. That when you have to prove your innocence, so this proof of innocence burden is on to the accused person rather than the prosecution. Usually क्या होता है कि prosecution के पास ये proof of burden होता है कि उनको innocence proof करनी होगी, लेकिन इस केस के अंदर अपनी innocence proof करने का जो burden है वो accused के पास है rather than the prosecution. तो सिंपल अगर हम सम करें, मतलब जो मेन चीज़ें हैं जिसको लेकर चैलेंजेस आए हैं वो यही चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट और ईडी के पास ये पावर्स हैं कि वो किसी को भी समन कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी रेड कर सकते हैं। जो बेल है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है, एंड अपनी इनोसेंस प्रूफ करने की जो बर्डन है दैट इज़ ऑन द एक्यूज्ड रादर देन द प्रोसिक्यूशन। नाउ मूविंग अहेड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडिया में हमारा ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, दिस इज़ द लॉ अगेंस्ट द स्कॉर्ज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग विच इज़ सच अ हीनियस क्राइम, उस हीनियस क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, उसे रोकने के लिए हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। इसे एक हैचेट के तौर पे ना देखा जाए विच कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द राइवल पॉलिटिशियंस और द डिसेंटर्स। नो, दिस इज़ एन एक्ट टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, नॉट a hatchet against the rival politicians। ठीक है जी। अब ये जो वर्डिक्ट आया है, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ चैलेंजेस रेज किए गए थे, अमेंडमेंट्स हुई टू दिस एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एंड इस एक्ट को लेकर जो अमेंडमेंट्स हुई उसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया। एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो अमेंडमेंट्स की गई थी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, दिस वाज डन थ्रू मनी बिल्स। अब आप जब पॉलिटी पढ़ते हो तो यू नो कि जब कोई मनी बिल होता है तो उसके ऊपर राज्यसभा का कोई रोल नहीं आता, इट इज़ होलसोली पास्ड बाय लोकसभा। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस एंड रिजेक्ट दैट बिल, वो अलग बात है। तो जो चैलेंजेस इस बिल को, इस एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई थी उसको लेकर किया गया, और सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बिठाया गया जिसके अंदर इन अमेंडमेंट्स को अपहेल्ड किया गया, और कहा गया कि ये जो इशू है कि इन अमेंडमेंट्स को मनी बिल्स के थ्रू किया गया है, इसको सेपरेटली एग्जामिन किया जाएगा। वो कोई लार्ज बेंच बिठाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, दे विल एग्जामिन कि ये जो अमेंडमेंट्स की गई हैं थ्रू द मनी बिल, इसको एग्जामिन करने के लिए एक सेपरेट बेंच होगा। अभी जो हमारे पास वर्डिक्ट आई है वो मनी बिल वाले एस्पेक्ट को टच नहीं करती, इट ओनली टॉक्स अबाउट द अमेंडमेंट्स विच वर डन इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्लियर? ओके, नाउ अब बेसिकली कुछ प्रोविजंस थे जो कि बेसिकली अंडर कंटेंशन है। देयर वर ओवर 240 पिटिशंस दैट वर फाइल्ड अगेंस्ट दिस अमेंडमेंट, एंड जो बेसिक क्लेम यहाँ पे किया गया वो ये था कि ये जो अमेंडमेंट्स प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हुई हैं, दे आर वायलेटिंग द पर्सनल लिबर्टी, द प्रोसीजर ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो इसके बेसिस पे इस
अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया कि ये पर्सनल लिबर्टी को वायलेट कर रहा है, जो हमारे प्रोसीजर ऑफ लॉ है उसे वायलेट कर रहा है, एंड इट इज़ ऑल्सो वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो एक एक करके प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं, पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट क्या था और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैसे जस्टिफाई किया है, क्यों अपहेल्ड किया है, एक एक करके इसे फॉलो करते हैं। स्टार्टिंग बाय द फर्स्ट थिंग विच इज़ अरेस्ट। अरेस्ट से भी पहले हमारे पास समनिंग आता है। यहाँ पे ईडी के पास एक और पावर है, दैट इज़ टू समन, राइट, समनिंग। अब समनिंग को लेकर पिटिशनर्स का ये आर्ग्यूमेंट था that accused they are summarily summoned by the ED and they are made to sign some statements and ultimately on the pain of threat of arrest कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, नहीं तो you come, तो उनको बहुत ईजिली बहुत रेगुलरली समन किया जा रहा है। एंड पिटिशनर्स का ये कहना था कि ईडी ने एक तरह से सिविल कोर्ट की पावर ले ली है कि वो कभी भी किसी को भी समन कर देते हैं। दे आस्क देम टू साइन सम स्टेटमेंट्स, अदरवाइज दे विल अरेस्ट देम बिकॉज ईडी ऑल्सो हैज़ पावर टू अरेस्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेटमेंट के रिगार्ड में कहा कि जो भी स्टेटमेंट्स आती हैं, स्टेटमेंट्स वो रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ एन इंक्वायरी। कोई रेलिवेंट फैक्ट किसी भी कनेक्शन में आता है, कोई क्राइम कहीं पे हुआ है, तो उसके प्रोसीड्स को लेकर कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं, दे आर पार्ट ऑफ एन इंक्वायरी, दे एक्ट एज अ रेलिवेंट फैक्ट। सो इसे आप इक्वेट आउट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ एन इन्वेस्टिगेशन फॉर प्रोसिक्यूशन। एंड हियर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अ पर्सन कैन नॉट क्लेम प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 20 which is our fundamental right against self-incrimination. A person cannot claim protection under that because it cannot be equated to an investigation for prosecution. ये जो statements ली जा रही हैं, these are part of some record which is a part of an inquiry. जो भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कहीं पे हुई है, उसकी प्रोसीड्स के कनेक्शन के अंदर कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स को लेकर इंक्वायरी की जा रही है। तो आप यहाँ पे आर्टिकल 20 लेकर नहीं आ सकते। यू रीड इन पॉलिटी आर्टिकल 20 इज आवर फंडामेंटल राइट एंड दिस फंडामेंटल राइट इज अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट वाज समनिंग, जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। इसके बाद आता है अरेस्ट। अब यहाँ पे पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट ये था कि ईडी they could arrest a person even without informing him of the charges। मतलब किसी person को arrest किया गया है और उनको ये भी नहीं पता कि उनके ऊपर charges क्या लगाए गए हैं। So without even informing the person of the charges, ED could arrest a person. And petitioner said that this is violating our Article 21. This is violative of our right to due process which is enshrined in Article 21. आर्टिकल 21 के साथ साथ हमारा जो आर्टिकल 22 है, इसमें भी ये मैंडेट किया गया है दैट नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम और हर ऑन व्हाट ग्राउंड्स द पर्सन इज बीइंग गेटिंग अरेस्टेड। तो आर्टिकल 22 ये कहता है कि यू मस्ट स्टेट द पर्सन शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑन विच ग्राउंड्स द अरेस्ट हैज बीन डन। तो ये पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट था कि अरेस्ट इस तरीके से हमारी लिबर्टी को वायलेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नोशन को रिजेक्ट कर दिया बिकॉज जो ईडी है उनको ये जो ब्लैंकेट दिया गया है, दे आर गिवन दिस पावर दैट दे कैन अरेस्ट, दे कैन सर्च एनी पर्सन, दे कैन सर्च द प्रॉपर्टी, दे कैन इवन सीज दैट। सो दिस इज डन in the form of an inbuilt safeguard. They need to record जो भी वहाँ पे reasonings हैं उनको writing में देनी होती है while effecting arrest. And Supreme Court ने ये भी note किया that they can verify using its own discretion. Suppose somebody was arrested कि कोई accused है, उनको further और detain करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने वेरीफाई किया है कि उनकी खुद की डिस्क्रिशन के ऊपर ये डिसाइड होगा कि वो फॉर द डिटेन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सो सुप्रीम कोर्ट कैन वेरीफाई दिस। सो कोर्ट हैज़ ऑल्सो सेड कि यहाँ पे जो कॉपी होती है ECIR की हर एक केस के अंदर, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। इट इज़ इनफ इफ ED एट द टाइम ऑफ अरेस्ट डिस्क्लोजेज द ग्राउंड ऑफ सच काइंड ऑफ अरेस्ट, देन ओनली। तो मतलब जो अरेस्ट का नोशन है
इसे भी इन द फॉर्म ऑफ इन बिल्ट सेफ गार्ड कि एक्ट में ही इसे लेकर सेफ गार्ड प्रेजेंट है. इट इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग ऑफ द रीजंस इन राइटिंग. ईडी राइटिंग के अंदर वो रीजंस देगा कि उन्होंने क्यों अरेस्ट किया है. तो दिस इज द सेफ गार्ड विच इज प्रेजेंट विद इन द एक्ट एज वेल. फिर बेल की बात आती है. अब बेल को लेकर पिटिशनर्स का ये आर्ग्यूमेंट था कि जो ट्विन कंडीशंस आती हैं बेल की, दे आर बेसिकली रेंडर्ड द होप ऑफ फ्रीडम because it is impossible to get the bail. So जो two conditions हैं, कहा गया कि these should be on reasonable ground for believing that the person who has been accused is not guilty of such offences. The accused is not likely to commit any offense while on bail. तो ये दो conditions हैं. These are the twin conditions of bail under the Prevention of Money Laundering Act. Number one, reasonable grounds that you are believing that the accused is not guilty of such kind of an offense, and second, that the accused is not likely to commit any such offense while on bail. अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो, जब हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट एन ऑर्डिनरी ऑफेंस. इट इज एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ क्राइम, नॉट जस्ट इन इंडिया, all over the world. And therefore we need such kind of a stringent law जिसके थ्रू हम एक deterrent effect create कर सकें so that we can actually prevent money laundering from happening. तो अगर कोई anticipatory bail के लिए भी plea करता है, even that has to undergo this twin conditions जो कि PMLA के अंदर डाली गई हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस की. लेकिन यहाँ पे जो अंडर ट्रायल्स हैं, दे कैन स्टिल सीक बेल अंडर दी CRPC सेक्शन 436A only if they had already spent 1/2 of their term of punishment in jail for the offence which is prescribed in the law. अगर वो one half of their punishment जो है वो जेल में स्पेंड कर चुके हैं, only then they can apply for bail. तो ये बेल के रिस्पेक्ट में कहा गया. इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि ये कोई आम, कोई ऑर्डिनरी ऑफेंस नहीं है. दिस इज एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ क्राइम. तो हमें स्ट्रिंजेंट लॉ की ज़रूरत है. अगर बेल नियरली इम्पॉसिबल हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस ट्विन कंडीशंस, कोई बात नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग बंद होनी चाहिए. देन अब लास्टली जो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात है. अब पिटिशनर्स ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि जो बर्डन है कि अपनी इनोसेंस प्रूफ करो, ये हैवीली सिर्फ और सिर्फ एक्यूज्ड पर्सन के शोल्डर्स के ऊपर लाई करती है. लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये जो प्रोविजन है, इट डज नॉट सफर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वाइस आर्बिट्रेरीनेस और अनरीजनेबलनेस. कि एक बार जो मटीरियल्स हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं कि द पर्सन हैड इन्वॉल्वमेंट इन सच काइंड ऑफ क्राइम अंडर दिस एक्ट, इट इज़ एक्सेप्टेड. सो द बर्डन मस्ट शिफ्ट ऑन द पर्सन. वो अपनी इनोसेंस को प्रूव करें कि नहीं, अगर आपके पास कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वो पर्सन इन्वॉल्व था, सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन टू डिस्पेल दैट सस्पेशन. सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ जस्टिफाइड दैट द बर्डन ऑफ द प्रूफ ऑफ इनोसेंस is on the accused, not on the prosecution. Then there is one more clause of attaching a property. तो जो पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि दे बेसिकली ऑब्जेक्टेड द पावर, जिससे कि ईडी को ये पावर मिली गई है कि दे कैन अटैच द प्रॉपर्टी एज द प्रोसीड ऑफ क्राइम. So they said कि they had contended that even properties which were not proceeds of crime can also be attached by the agency. तो कुछ ऐसी properties जो कि मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से नहीं आई हैं, उनको भी ईडी उनको भी एज अ प्रोसीड ऑफ क्राइम लगाया जा सकता है. अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम PMLA का सेक्शन 5 देखें, दिस बेसिकली कंसर्न्स विद द प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी that cannot be used by the agency mechanically. That is only the provisional attachment. Authorities इस act के अंदर they cannot resort to take action against any person for money laundering just on assumption that the property which has been recovered must be from the proceeds of crime. Assumption के basis पे किसी भी person की property के against कोई action नहीं होगा. It is a scheduled offence and this has to be confirmed first. It has to be committed first. अगर ये declared है, अगर ये दिख रहा है कि ये जो particular property है ये money laundering के through आई है, then the action can be taken. Unless the same is registered with the some jurisdictional police और कोई pending inquiry है, तो वो बात अलग है.
द कोर्ट हैज सेड कि जो प्रोविजंस हैं, इन प्रोविजंस से एक बैलेंस अरेंजमेंट दिया गया है ताकि जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड के साथ साथ जो स्टेट है, इनके जो इंटरेस्ट हैं वो बने रहें, उसे लेकर एक बैलेंस्ड अरेंजमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है. If accused was eventually absolved of the crime, there would be no further action that could be taken against the attached property, which is suspected to be have linked with the crime. Okay. अब देखें, आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाना कि एक एक आप क्लॉज पढ़ रहे हो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, नहीं. यू शुड बी एबल टू नो कि ये एक्ट किस लिए बनाया गया है, इसका पर्पस क्या है एंड इसके मेजर फीचर्स क्या हैं, बिकॉज प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. 2017 के प्रीलिम्स में प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टीज़ ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के ऊपर क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर मेनली यही था कि ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजर प्रोविजंस क्या है इस एक्ट के, उसे लेकर क्वेश्चन हो. तो जब भी कोई आपको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बोले तो आपके माइंड में ईडी आना चाहिए. ईडी के पास क्या क्या पावर्स हैं, ये किस तरह का क्राइम है, दैट शुड कम इन योर माइंड, एंड दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. I will see you all in my next one. Thank you.